Hello everyone, welcome to GS Pinnacle classes. मैं नीतीश सिन्हा आज फिर से इस मैथ के सीरीज में क्लास 8 के मैथ के सीरीज में रेशनल नंबर का फोर्थ वीडियो एक्सरसाइज 1.2 दैट इज रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन कि हाउ टू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन. And also we have studied in this video what is the number, how many rational number between two rational number. Okay, so first we have a start that the number line. Number line means we have to represent any number on a number line. So according to theory, first we should check that the different type of number. First one is the natural number or either this is one counting number. How to represent that? That means counting number is 1 to infinity. That means you have to only start with 1 2 3 4 5 6 up to dot infinity. So that is natural number. But whole number, that is w, including to 0. That means you have to start it with number line system on 0. Integer, that means here there are two sides. This one is 0, that means neutral number. Right hand side, that is positive number, and left hand side, that is negative integer. तो हम इसे क्या करेंगे? We should represent on a number line system positive number, that is 1 2 3 4 up to infinity, that is right hand side of the 0. Similarly we should represent minus 1 minus 2 minus 3 up to dot minus infinity on left hand side of the 0, that is called negative number. Then comes into the rational number. तो rational number जब हम बात करते हैं, that means here denoted by PQ4 or either M by N ratio. तो here -1 से 1, -1 to 1, between how many rational number you should represent? There are n type of number, but first in class 7 you have to study the mean method. Then you should differentiate like 0 to 1. That means mean is what? 0 plus 1 divided by 2, that is 1 by 2. So 1 by 2 is one rational number between 0 to 1, and again 0 and -1 के बीच में मीन निकालेंगे, दैट इज -1 by 2. अगेन -1 by 2 इज ए रेशनल नंबर. ओके, तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर. दैट मीन्स हियर आल्सो 1 by 2 मीन्स व्हाट? दैट मीन्स 0 to 1 is divided into two sub equal part. That is here denominator 2 represents that how many sub interval divided on this numerator part. जो हमारा न्यूमिनेटर में पार्ट है 1 को कितने सब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? 2 में, दैट इज 1 by 2. सिमिलरली हियर वन एग्जांपल गिवन 0 and 1. दिस वन इज 1 by 3. दैट मीन्स 0 and 1 is equally divided between how many parts? 3 parts. That is 1 by 3. Here what? That is 2 by 3. So that is the representation of the number line system. So similarly it is written as different type of rational number. Like we have to represent that the one number line system, that is given as here. First draw the number line system, and number line system we have to represent that what? Here 0, here 1, and this one is divided into suppose n number of parts. But let us consider that it is divided into 7 part. That means here what? Suppose first 7 part, that means here 1 by 7. Okay, तो similarly to represent that 1 by 7, तो इसे हम क्या करेंगे? यहाँ से जस्ट स्टार्ट करेंगे 1 by 7, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7,
5/7, 6/7, and this one is 7/7. So how many rational number between 0 to 1? When 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So in this way you have to determine that the 7/5. And here also, suppose a given number like -5/9. You have to represent this number on a number line system. That means what? Here denominator is 9 and numerator is 5. That means 5 is divided into 9 equal parts. That means here first draw the number line system. That means here 0. Left hand side that is negative. So this one is the here given minus sign. That means -9/9, that is here -1. तो अब यहाँ से हम करेंगे कि यदि -1 होगी कब? जब हमारा -9 डिवाइडेड बाई 9 होगा. तो अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम 0 यहाँ करते हैं. -8/9 -7/9 -6/9, here -5/9 -4/9 -3/9 अप टू -2/9 -1. तो इस तरह से चलेंगे. तो हमें क्या कर रहे हैं? हमें रिप्रेजेंट करना था कि -5/9 को आप नंबर लाइन सिस्टम पे. तो दिस वन इज -5/9. ओके. तो इन दिस वे यू हैव टू represent a rational number on number system. Like one example already discuss that rational number, how to represent that. Suppose here given that this one is number line system and this one is given as for a textbook problem. This one is 0/5 and here position this A. This one is given as 2/5, this one is 3/5 and this one is already unknown position, this one is already unknown position and this one is 6/5, 7/5 unknown position, then here 10/5, 11/5, 12/5. तो ये क्या हो रहा है कि 5 को है ना, अब ये एक एक करके डिफरेंट टाइप में n नंबर ऑफ पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? जस्ट सिंपली 1/5, हेयर 4/5, हेयर 5/5, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, हेयर 8/5, हेयर 9/5. तो इन दिस वे यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट द रेशनल नंबर. बट नेक्स्ट टॉपिक, this one is the representation, but how to determine that the rational number between two rational number. अब यहाँ से टॉपिक हमारा चेंज हो जाएगा कि रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर. तो अब हमारा 2 रेशनल नंबर गिवन है. सपोज हम बात करते हैं पहले रेशनल नंबर से नहीं, कि सपोज हमें 1 and 5 है, 1 and 5 है. तो हाउ मेनी व्हाट नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 5? तो हम बोलेंगे 2, 3 and 4. सपोज हम बात करते हैं कि 7 and 9 है, तो इसके बीच कितना है? 8. 8 and 9 के बीच हमारा क्या है? नन, कोई भी हमारा नहीं है. बट सिमिलरली हम बात करेंगे कि यहाँ हमारा -3 और 2 के बीच, तो कितने हो गए ये? इसमें अब क्या होगा? व्हाट, ये हमारा अब नेचुरल नंबर नहीं आएगी. इसमें हमारा जैसे ही आपका दिस वन इज निगेटिव साइन, दैट मीन्स इंटीजर, दैट मीन्स हेयर -2. ओके, दिस वन इज -2, -1, 0, 1, ये हमारा इन बिटवीन नंबर हो गए. बट हाउ मेनी
रेशनल नंबर। अब इसी तरह से ये हमारा क्या है, इंटीजर के लिए बात हो रही थी कि इसमें इंटीजर में हमें कितने आपको करस्पॉन्डिंग मिलेंगे। अब हम यदि बात करेंगे कि यहाँ पे -9 सपोज -10 एंड -11 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो सिंपली क्या है, -10 के बाद -11 दैट इज नन, 0, एक भी हमारा इसके बीच इंटीजर नहीं है। बट यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक कोई नंबर हमारा गिवन है कि 2/10 एंड 6/10। अब इन बिटवीन ये हमारा क्या है, दैट इज रेशनल नंबर m/n के फॉर्म में, दिस वन इज डिनोटेड इन m/n फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर, तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, दैट इज मीन मेथड। तो फर्स्ट डिटरमिन किससे करेंगे, मीन मेथड। यू हैव टू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7। मीन मेथड में क्या होगा, इन बिटवीन दोनों के बीच का हम क्या करेंगे, समेशन 2 + 10 प्लस 6/10 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से हमारा 10 एलसीएम हो जाएगी, दैट इज 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स हमारा ये क्या हो जाएगा, 8/10 इंटू 1/2 दैट इज 4/10। तो ये हमारा एक 4/10 जो हमारा नंबर लाइन होगा। अब ये हम नंबर लाइन सिस्टम बात कर रहे हैं कि यहाँ हमारा 2/10 है सपोज, और ये 6/10 है, तो इन बिटवीन एक 4/10 आएगी। तो अब इन बिटवीन अभी हमें इसमें क्या है, n क्या है, रेशनल नंबर है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इन बिटवीन इसका क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, तो फिर हमें यहाँ पे एक रेशनल नंबर मिलेगी। फिर इस तरह से यहाँ पे हम इन बिटवीन 2/10 एंड 4/10 का मीन निकालेंगे, तो वहाँ एक रेशनल नंबर मिलेगी। देन अगेन दिस नंबर एंड दिस नंबर, तो दिस वन इज द टीडियस मेथड। इसमें हमारा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होगी, बहुत लेंथी कैलकुलेशन होते जाएंगे। तो ये हमें क्या है, इनिशियल लेवल के लिए हमें डिटरमिन किया गया था। जब हम से यू हैव टू स्टडी इन क्लास 7, जस्ट यू शुड यूज दैट दिस मेथड, ओके, टू डिटरमिन द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। हम किस तरह से करेंगे, मीन मेथड से कि दो के बीच का हम रेशनल नंबर निकालेंगे। जैसे एक का और निकालते हैं, 4/10 प्लस 6/10 क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या होगा, 10/10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1/2। तो अब ये देखिए क्या है, 1/2 आ गया, किसके, इसके और इसके बीच में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1/2 एक नंबर है। तो इस तरह से हमारा एक एक करके सीरीज आते जाएगी। बट यू हैव टू स्टडी इन मोर एडवांस फॉर्म और जस्ट ट्रिकी हाउ टू डिटरमिन कि हम कौन सा ऐसा एक मेथड लगाएं जिससे हमें इतना लंबा कैलकुलेशन, इतना लंबा सोल्व हमें नहीं करना पड़े, बार बार मीन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो उसके लिए हम बात करते हैं कि किस तरह से हम दो जो नंबर दिए हुए, दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच हम रेशनल नंबर किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, लाइक सेम प्रॉब्लम गिवन एज, यदि हमारा एक प्रॉब्लम है ना, कि 3/10 एंड दिस वन इज 7/10। तो यदि ये सिंपल है ना, ये प्रॉब्लम यदि इस तरह से रहेगी तो इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये हमें देखिए m/n के फॉर्म में, n इज डिनोमिनेटर पार्ट, दिस वन इज न्यूमरेटर पार्ट। तो हमें क्या है, ये दोनों नंबर में डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम है तो कुछ भी नहीं, हमें सेम ही करना है। जहाँ पे नहीं गिवन होगी सेम, तो उसमें हमें दोनों नंबर के बीच हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो इस केस में यदि हम बात करेंगे तो 3/10, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10। तो ये हमारा जो है 3 जो नंबर आए, 4/10, 5/10, 6/10, दिस वन इज द रेशनल नंबर बिटवीन 3/10 एंड 7/10। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। और ऐसा नहीं, हम किसी भी तरह
मतलब हम तब तक इसके रेशनल नंबर को ये करेंगे, रेशनल नंबर को हम करते जाएंगे कि अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम बढ़ाते जाएंगे इन बिटवीन, कि जब तक हमारा रिक्वायर्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफिल नहीं हो जाती है। तो चलिए इसी कंसेप्ट को यूज करके हम क्या करते हैं, अनसोल्व प्रॉब्लम जो भी हमें गिवन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, लाइक आपका एक्सरसाइज 1.2। तो अब फर्स्ट वन हमारा जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट में हमारा क्या है 7/4 एंड सेकेंड नंबर जो है हमारा, सेकेंड नंबर की हम बात करते हैं -5/6। तो कुछ नहीं, जस्ट सिंपली यू हैव टू रिटेन दैट ये हमारा क्या है नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन में ये हमारा क्या है पॉजिटिव नंबर है। तो जब पॉजिटिव नंबर है तो हम बात करेंगे क्या कि जो भी हम 7/4 है तो इसको हम किस तरह से करेंगे कि हमारा यहाँ पे नंबर लाइन सिस्टम में काम आ जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0, अब हमारा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 and 8/4 that is called 2। ओके, तो हमारा नंबर लाइन पे क्या हो गया ये, दैट इज 7/4। अब सेकेंड जो प्रॉब्लम है -5/6। तो -5/6 है, तो फिर से हम क्या है नेचुरल लाइन नंबर लाइन को हम ड्रॉ किए। अब हमारा क्या है 0 यहाँ पे हो गई, 0 के लेफ्ट साइड में क्या होगा हमारा निगेटिव नंबर आएगा, दैट मीन्स -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, दैट इज क्या है ये 1 है, दैट मीन्स -1। तो ये हमारा क्या है -5/6। सिंपली इसको सर्कल कर देंगे, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ओके, इट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि किसी भी तरह का नंबर आएगा तो उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यदि हमारा एक क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हमारा क्या है -2/11, -5/11, -9/11। तो इस केस में हमारा एक नंबर लाइन ड्रॉ किए और हमें क्या है सभी निगेटिव वैल्यू है, दैट इज यहाँ पे हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -1/11, क्योंकि 11 है और 11 को हमें क्या करना है पार्ट में डिवाइड करना है, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 एंड दैट इज -1, 11/11। तो देखिए अब 2/11 हमारा कहाँ आया, दिस वन इज 2/11, -5/11, -9/11। तो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन सिस्टम। देन हम अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है कि 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। क्या बोलता है हमारा कि 5 रेशनल नंबर विच इज लेस
देन 2। तो अब क्या करेंगे, इसे भी हम नंबर लाइन पे लेकर बना देते हैं कि हमारा ये क्या है 2 हो गया है ना, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा क्या है क्योंकि स्मॉलर देन 2 है दैट इज ये हमारा -1 हो गया। तो यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या है 1 लिख दिए, यहाँ पे 1/2 लिख दिए, यहाँ पे -1/2 लिख दिए। अब हमें 5 भी लिखना था, 1 2 3 4 5, क्योंकि 1/1 रेशनल नंबर, -1/1 रेशनल नंबर है। तो हमने क्या है इस तरह से 5 रेशनल नंबर हमने क्या किए लेस देन 2, तो लेस देन 2 हमने लिख दिए। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब हमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज इंटरेस्टिंग कि इसमें अभी हमारा जो हमने कंसेप्ट बताए हैं उसी का हमारा यूज होने वाला है कि उसको किस तरह से आप यूज करेंगे। कि आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 10 रेशनल नंबर। हाउ मेनी? 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो अब देखिए आपका क्या है -2/5 और एक दूसरा नंबर क्या है 1/2। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है, 1 इज 5 1 इज 2। तो इस केस में हमें क्या करना होगा कंसेप्ट यूज करना है, क्योंकि हमें 10 तो ऊपर जो हमारा जो भी नंबर आएगा न्यूमिनेटर में वो भी 10 होना चाहिए के डिफरेंस में होने चाहिए। और सेकेंड जो है हमारा न्यूमिनेटर पार्ट मस्ट बी सेम ऑन बोथ नंबर, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमें सेम करना है। तो आप सेम करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे और सेम करस्पॉन्डिंग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा दोनों नंबर सेम हो। और सेम यदि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको सेम मैनेज करने के लिए ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए अब कोई अभी जैसे किसी को अभी आइडिया नहीं है तो वो क्या करेगा, सर इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से, ये 10 हमारा तो मल्टीप्लाई हो गया बराबर। तो यदि बाबू 10 से करोगे तो आप ये देखो इसको भी 2 से ऊपर करोगे और इसे भी 2 से, तो ये 2 कैंसिल आउट तो नहीं होगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे लिखो, जब यहाँ पे क्या लिखोगे, जब यहाँ पे लिखने जाओगे सॉरी ये हमारा क्या है 5 से, तो ये -4/10 और ये क्या हो गया 5/10। अब ये आपको पूछ रहा है कि 10 रेशनल नंबर, तो ये तो आप कहाँ से लिख पाओगे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो देखो 4 4 8 एक 9 ही नंबर हो रहा है, आपको 10 निकालना है। तो आपने तो जो किया वो रॉन्ग हो गया। तो लेट अस चेक दैट द कि आपको ये भी चेक करना है कि ऊपर जो हम मल्टीप्लाई करें एक ऐसा नंबर हम ढूंढे, क्योंकि ये आपको सोचना पड़ेगा कि एक ऐसा नंबर ढूंढे जिससे हमें ऊपर भी जो हमारा 10 रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। तो अब इसी को हम देखिए मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा जो नंबर गिवन है 2/5 एंड 1/2। तो आप इसको क्या कीजिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो 20, यहाँ पे 10/10 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8/20 और ये 10/20। तो अब इन बिटवीन आप इसको नंबर लिखिएगा तो -8/20 -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 सभी में कॉमा, ओके, -1/20, इसको 0/20 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/20 2/20। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलरेडी हो चुकी है तो हमें लिखने की जरूरत। तो आप इन बिटवीन ये क्या है 10 रेशनल नंबर इजिली हो गए। ओके, इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें क्या करना है, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन, अब हमारा क्या है पहला नंबर जो दिया है 2/3 एंड
4/5। अब इसके बीच में हमें क्या है, 5 नंबर डिटरमिन करने हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस कि हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम यदि 30 बनाते हैं, 10 से करते हैं तो ये 20 हो जाएगा और ये 6 24 हो जाएगा। तो 4 का ही रहा, तो 4 ही होगा, नहीं मिलेगा। तो अब हम 30 से ज़्यादा करें, 30 से ज़्यादा क्या होगा, 40 नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता है, 60। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4/5 में 12 से करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 60 हो गई। तो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा 20 से, यहाँ पे 12 से। तो ये हमारा नंबर हो गया 40/60 और ये हमारा 48/60। तो अब हम इजली इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, 5 नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60। बट हमारा ऑलरेडी 5 नेचुरल नंबर हो चुके हैं। देन सेकेंड प्रॉब्लम हमारा क्या बोल रहा है कि सेकेंड जो है हमारा नंबर है वो जो गिवन है कि वो किसके बीच हमें निकालना है। तो सेकेंड नंबर में हमें -3/2 एंड 5/3। तो अब इसके बीच में फिर हमें क्या करना होगा, सेम कंडीशन अप्लाई करने होंगे। तो सेम यदि अप्लाई करेंगे तो अब देखिए हमारा क्या है, इसको 20 तो इसको 20 नहीं बना सकते हैं। इसको यदि आप 30 बनाएंगे तो ये 30 बनेगी। तो 30 के लिए इसे 30 इसे क्या है, डिनोमिनेटर को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और इधर 10 से। तो देखिए 15, 45 और 50 तो क्या होगा, इनके बीच में नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना होगा, एक और ज़्यादा पे जाना होगा। तो जब ज़्यादा पे जाना होगा तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम कौन सा मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 30 की जगह हम 60 में लेकर जाते हैं। तो जैसे अभी -3/2 के बीच में हम अब नंबर लिखेंगे तो हमारा कौन सा आएगा, दैट इज 15/15 एंड 5 × 15 3/10। तो ये क्या हो गया, -45/30 और ये नंबर हमारा क्या हो गया, 50/30। तो इसके बीच में -45 से 50 के बीच हमें क्या करना है, ओनली 5 नंबर लिखने हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -44/30, -43/30, -42/30, -41/30, -40/30, 1 2 3 4। अभी बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। ओनली हमें कितने लिखने थे, ओनली राइट डाउन 5 रेशनल नंबर। देन थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि किसके बीच का हमें निकालना है, थर्ड नंबर में 1/4 एंड 1/2 के बीच का। तो जब हम 1/4 एंड 1/2 के बीच, तो कितने हमें 5। तो हम दो चीज़ें से कर सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या होगा, इसको 20 बना सकते हैं। तो यदि इसको 20 बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, दैट इज, तो 5 से तो ये ऊपर 5, इधर 1/4 × 5, तो ऊपर से भी 5 से मल्टीप्लाई और इसे 10 से, और ये हमारा क्या हो जाएगा 10। तो ये 5/20 और ये 10/20। इसके बीच में हमें क्या है, 10 नेचुरल नंबर लिखने हैं, सॉरी रेशनल नंबर। तो 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, ओनली कितने हुए, 4। तो इसीलिए हमने क्या है, फर्स्ट में ही बोला था कि आपको ये ऐसा, यदि हम डिनोमिनेटर पार्ट को सेम कर रहे हैं तो ऊपर हमारा जो न्यूमरेटर पार्ट है उसके बीच का डिफरेंस हमें ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5। तभी हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच हम 5 नंबर
लिख सकते हैं। तो हमें क्या है, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से नहीं होगी। दैट मीन्स हमारा 1/10 मतलब 10 मतलब 40 और ये हमारा क्या हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/40 एंड 20/40। अब इसके बीच में आप कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं क्योंकि आपका 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40, 16/40। तो हमें कितने ओनली 5 रेशनल नंबर लिखने थे। तो इस तरह से हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किए। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछ रहा है कि अगेन राइट द 5 रेशनल नंबर, व्हाट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अब -2 से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये नंबर लाइन सिस्टम है। अब ये नंबर लाइन सिस्टम है तो नंबर लाइन सिस्टम पे भी कर सकते हैं और विदाउट नंबर लाइन सिस्टम पे। तो -2 से बड़ा हो तो -2 से बड़ा क्या हो गया -1, देन 1, 2, 3, 4, 5। ये सभी जो रेशनल नंबर है, अब बोलेंगे सर ये तो इंटीजर है। तो हमने क्या बोला कि जिस भी नंबर को m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसके बीच क्या है -1/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। तो इसे हम क्या है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसीलिए ये हमारा इन बिटवीन है। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से है कि हमें कितने 10 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर बिटवीन किसका है 3/5 एंड 3/4। तो अब फिर से हमें क्या करने होंगे 10। तो दैट मीन्स हमें ऊपर का जो डिफरेंस है वो 10 से ग्रेटर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमेशा। और नीचे डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल करना है। तो 3/5 और 3/4। तो इसे हम क्या चीज़ से डिनोट करें, तो हम इसको ये करने के लिए यदि हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 60 होगी और ये हमारा क्या होगा 15 होगा, है ना। तो हम इसके बीच में ऊपर क्या हो गया 12, इधर 15, तो 36/60 एंड 45/60। फिर से हमें ये इनके बीच का डिफरेंस देखिए क्या है 9 का ही है, तो इसलिए हमारा ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम फिर से चेक करेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर हो कि इसमें हमें फिट बैठे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसे हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगी और इसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर सेम हो गई। और ऊपर करेंगे तो 3 × 20 दैट मीन्स 60/100 और ये हमारा क्या हो जाएगा 75/100। तो अब इसके बीच हमें क्या है 10 रेशनल नंबर लिखने हैं तो क्या होगा दैट इज 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, then 69/100, 70/100 अप टू कहाँ तक 75 तक लिख सकते हैं। बट हमें क्या है ओनली राइट डाउन द 10 रेशनल नंबर। तो इस तरह से हमें क्या है जब भी रेशनल नंबर, फर्स्ट मेथड क्या था मीन मेथड दैट इज एवरेज बिटवीन दीज टू। तो अभी 10 रेशनल नंबर निकालने हैं अभी। अब इस मेथड का फायदा क्या है रेशनल नंबर में कि यदि अभी हमें 10 रेशनल नंबर निकालने थे तो उस केस में हमें हर का मीन, इस दोनों के बीच का मीन, इस दोनों के बीच का मीन, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगी और आप बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं मेथड सेकेंड दैट इज अल्टरनेटिव मेथड
कि उसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट को सेम करते हैं। तो उस वजह से हमारा डिनोमिनेटर पार्ट को सेम करेंगे और न्यूमिनेटर जो वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस ऑलवेज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर होना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है। इसमें हमने क्या क्या ब्रीफ में हम कर रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा कि रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन सिस्टम एंड हाउ टू डिटरमिन दैट द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, है ना, जिसके दो मेथड, वन इज द मीन मेथड एंड सेकेंड इज द डायरेक्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ओके, तो ये हमें ऑलवेज ध्यान रखना है। तो इसी के साथ दैट इज चैप्टर 1 फिनिश्ड। और यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में आप ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई और आपको पूरा सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड करेंगे। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।